Yes, student, let us discuss the next topic that is called Earth magnetism. Now, different experiments shows that Earth is also behave as a magnet. One of the evidence that Earth behave as a magnet is if you have a freely suspended magnet, that magnet always align itself in the direction of geographic north and south. तो अगर इसको फ्री छोड़ दें, इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और साउथ, इट मीन अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, जिस साइड अपना नॉर्थ है उसका उस साइड क्या है, साउथ है. सेकेंड एविडेंस वाज इफ़ यू बरीड समथिंग इनसाइड द अर्थ, इफ़ यू बरीड समथिंग इनसाइड द अर्थ, समथिंग मीन सम मैग्नेटिक मटेरियल, ये ना हो कि कपड़ा रख दो या कुछ कागज़ रख दो, द मैग्नेटिक मटेरियल. कुछ दिनों बाद अगर उसको बाहर से निकालो, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म. So if it shows the property of magnetism, it means inside it there is a magnet. By induction, that magnet make this material also a magnet. This shows the property of induction. So there are some more evidences which shows that Earth behave as a magnet. Another evidence that we come across, you know that Earth, inside the Earth, yes, okay. Yes, inside the Earth, inside the Earth, the core of the Earth is very hot. The core of the Earth is very hot. Due to that, the circulating ions in the highly conducting liquid region of Earth's core form the current loop. And due to current loop, there is production of magnetic field. So there are number of other reasons too, but basically these are some of the 2 or 3 evidences which shows that Earth behave as a magnet. If I go for this one is my Earth. This is called which is geographic north, and this is called south. You know that this is called west and this is called east. Earth rotate like this. This line which joins north and south, this line is called geographic axis. Is it visible? Geographic axis. The line joining this and this is called geographic axis. Similarly, inside the magnet, similarly inside the Earth, there is a magnet. There is a magnet, but the position of this magnet is like this. It means this side is south and this side is north. Once again, ये कोई मैग्नेट है नहीं बच्चे, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है. ये रिप्रेजेंटेशन है. This is a bar magnet inside the Earth. We suppose, just my assumption, in such a way the south of that bar magnet is towards the geographic north. The line joining south and north of this magnet is called, yes, this is called geographic axis, this is called magnetic axis. This is called magnetic axis. This is called magnetic. A great circle passing through this great circle is called magnetic equator. This is called magnetic equator. Similarly, the great circle passes through this geographic axis. This is called geographic equator. This is called geographic equator. So one is this, second is the geographic equator. अब ये पैरामीटर मेरे को क्यों चाहिए? I need these parameters to explain my next most important topic, that is called magnetic elements of Earth.
or sometimes it is called elements of Earth's magnetic field. Elements of Earth magnetic field. So what are these elements? In order to find the Earth magnetic field at a place, we need some parameter. That parameters are called elements of Earth magnetic field. Number one is angle of declination, or sometimes it is called only declination. Second is angle of inclination, or it is called angle of dip. Third is horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal components of Earth's magnetic field. These are the parameters which I need to find the Earth's magnetic field at a given point. Let us once again define certain parameter. So let us suppose this is the magnetic meridian. I suppose this is magnetic meridian. What is magnetic meridian? It is a vertical plane which passes through the magnetic axis. Similarly, in this side, I am going to draw geographic meridian. Geographic meridian. Again, I draw the earth. Check करना बच्चे. फिर से draw कर रहा हूँ अर्थ. ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो हमने कहा यहाँ नॉर्थ पोल होता है बच्चे, और इसके डायमीट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन सा पोल होता है? साउथ. और इस एक्सिस को बोला ज्योग्राफिक एक्सिस. बट अगर मैं जो अर्थ के मैग्नेट की बात करूँ, वो ऐसे ही बेटा, उसका इस साइड साउथ है और इस साइड क्या है? नॉर्थ है. इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, थीटा. और वी कैन से, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये बन जाएगा दूसरा मीडियम. दोनों मीडियम के अंदर अगर मैं उसकी वैल्यू फाइंड करूं, दैट विल बी दैट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस, और द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन is called angle of declination. This angle theta. Let us suppose this side the resultant magnetic field exists. Let us suppose this side the resultant magnetic field किसकी? अर्थ के बार मैग्नेट की is acting. Now this B makes some angle with this horizontal line. अगर सिंपल सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ के ऊपर मैंने ड्रॉ की. यहाँ मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट उसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले प्लेन में, तो इसके अंदर कुछ एंगल बनेगा. ये मैं बी लिख रहा हूँ, वही चीज़ इस साइड है बच्चे. तो दिस एंगल डेल्टा, दिस एंगल इज डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेप्थ. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेप्थ. नाउ इट इज क्लियर इन दिस डायग्राम दिस बी कैन बी रिजॉल्व टू टू कंपोनेंट. फर्स्ट इज बी एच, बी कॉस डेल्टा. नीचे आता हूँ बच्चे, बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा. दो कंपोनेंट है इसके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा वर्टिकल. बट वन थिंग इज क्लियर दैट एंगल ऑफ डेप्थ इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन मैग्नेटिक मेरिडियन. थोड़ी सी डेरिवेशन. सो बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा और बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा. अगर मैं पोल्स की बात करूँ, एट पोल्स, so if you go for this, what will happen at poles? So at pole you will find that delta equal to 90. These are called pole. This is pole. So at pole delta is equal to 90. So BH equal to B cos 90, BV equal to B. And if I go at equator delta will be 0.
So BH will be equal to B, but vertical component will be 0. Also, if you add square and add 1 and 2, squaring and adding 1 and 2, we get, हाँ जी बच्चे, BH का स्क्वायर plus BV का स्क्वायर is equal to B square. From this I can find the value of resultant magnetic field, that will be BH square plus BV का square. Similarly, if I find second divided by first, so it will be tan delta equal to vertical component divided by horizontal. So from this I can find this value too. So these are the some of the points you have to remember in solving the numericals. So I have three components. Once again, angle of declination, angle of dip, and horizontal component of Earth's magnetic field, which I require to find the resultant magnetic field at a given place, at a given point on the surface of Earth. Then we define a new term that is called neutral point. Neutral, as the name implies, neutral, it is that point where magnetic field due to a bar magnet, not Earth ka, any bar magnet, due to a bar magnet is equal to horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. If you are at neutral point, there is no deflection in the compass needle. It can stay in any direction if you get neutral point. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है CBSE में, कौन सा कंपोनेंट बैलेंस करेगा? वर्टिकल नहीं बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. There is a method to learn how to find the neutral point. Listen carefully. So there are two cases. Number one, you have to remember 4N. It says that if this is a bar magnet, this is North Pole, South Pole, geographic north, geographic south. So if the north of a magnet towards the geographic north, the neutral point lies on the neutral axis. Clear? So these are the neutral axis. These are the, तो लाइन जाएंगी नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाएंगी साउथ टू नॉर्थ, यहाँ से जाके यहाँ पे टर्न कर जाएंगी, पर कोई भी लाइन न्यूट्रल पॉइंट से नहीं पास करेगी बेटा, ऐसे चल जाएगी बट कोई भी इसमें से नहीं पास करेगी. सो व्हेन न्यूट्रल पॉइंट्स व्हेन नॉर्थ इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ, द न्यूट्रल पॉइंट्स लाइज ऑन न्यूट्रल एक्सिस. सेकेंड, व्हेन नॉर्थ इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिक, the neutral points lies on axial line. Means अगर मैं ये बच्चे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, तो अभी मेरे को न्यूट्रल पॉइंट लेना है, तो ये जो एक्सियल लाइन है, आइदर इट विल बी ऑन दिस पोजीशन और दिस पोजीशन. इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो अगेन यू विल ड्रॉ द लाइन्स, बट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस साइड. द न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन दीज टू एक्सेस. Once again, at neutral point, magnetic field of bar magnet is balanced by horizontal component. If I take this, in this case also, B is equal to, this is this case. So for this case, if you apply the formula, magnetic field due to a bar magnet at any point lies on equatorial, then B is very short dipole. B is equal to mu naught by 4 pi m upon r cube is equal to BH. So we can find whatever values we want to find depending upon what value is given. Similarly, in this case, it will be mu naught by 4m 2m upon r cube equal to BH, and BH's formula is same, B cos delta. So this is all about Earth magnetic field and the different component.
If I go further, then I come to concept that is called magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल का कंसेप्ट बड़ा ईजी है. बहुत ईजी कंसेप्ट. मैग्नेटिक मटेरियल्स, डिपेंडिंग अपॉन द different types of result obtained when a given substance is placed in external magnetic field, we divide the magnetic material into three categories: diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. डाया, पैरा एंड फेरो. बिहेवियर से कैसे पता लगता है? सो वी विल राइट वन बाय वन. इफ यू प्लेस दिस सब्सटेंस इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज दिस साइड इज नॉर्थ पोल, दिस साइड इज साउथ, और ये मैंने रख दिया है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मैग्नेटिक जैसे बाहर जाएगी तो ये सब्सटेंस रिपेल होगा और पीछे की तरफ मूव करेगा. It means diamagnetic substance is a substance which are feebly repelled by the magnet. We can write which is feebly होता है weakly, repelled by the magnet. Repelled by magnet. First property. अब इसका उल्टा इधर है, ये साउथ पोल नॉर्थ. यहाँ पे अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखता हूँ तो ये फीबली अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ. तो यहाँ था रिपेल, यहाँ पे आ गया बच्चे फीबली अट्रैक्ट. और आगे चलते हैं. फिर यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ पोल साउथ रखा इसको फेरोमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. दिस मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट द strongly attracted. So if such a material shows such type of behavior, then we will say this type of material is a ferromagnetic substance. तो डिपेंडिंग वंस अगेन किसको किस में रखना है तो उसके बेस पे हमने करेक्टराइज कर दिया कि अगर कोई ऐसा मटेरियल ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, इट इज़ कॉल्ड डाया. इफ दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी लेट अस डिस्कस. This material diamagnetic, this material diamagnetic when placed in external magnetic field, then it feebly magnetized, but in opposite direction. Feebly magnetized but in opposite direction. फीबली मैग्नेटाइज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसमें उल्टा हो रहा है, ये भी फीबली मैग्नेटाइज होएगा, फीबली मैग्नेटाइज्ड बट सेम डायरेक्शन. स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, जो प्रॉपर्टी बच्चे पैरा की फेरो की पर उसमें स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा. ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज. नाउ इट मूव्स, आपने देखा जब मैंने रखा तो वो पीछे गया. सो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर साइड, स्ट्रॉन्गर टू वीकर गया. इसका उल्टा बोलना हो, ये कहाँ जा रहा है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर. और इसमें तो हाई बहुत ज़्यादा हाई प्रॉपर्टी है, सेम होएगा वीकर टू स्ट्रॉन्गर. ये इनकी प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है. इसको अगर मैं सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में डायमैग्नेटिक की रॉड रख दी, तो डायमैग्नेटिक की जो रॉड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू दिस साइड. बट यही रॉड अगर मैं यहाँ रखता हूँ नॉर्थ पोल साउथ पोल तो ये इसके पैरेलल में आ जाती है. सिमिलरली इसे तो बताया था मैंने, दोनों की बच्चे प्रॉपर्टी सेम ही होती है इनकी. ये परपेंडिकुलर बट दीज टू आर इन दी डायरेक्शन. इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना बच्चे. जब इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड रखे नॉर्थ और साउथ, तो लाइंस इनके बीच में प्रेफर करना पसंद नहीं करती. वो कहती है बाहर से चल जाओ, उनके बीच में नहीं जाना.
इफ़ सच ए सब्सटेंस शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर तो हम बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि वो जाना पसंद नहीं कर रही। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विल बी नेगेटिव। अगर वो पसंद करेंगी, जैसे इस केस में हो रहा था, बीच में जाना जाएंगी, वो ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत हो जाएंगी, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विल बी पॉजिटिव। और इसमें तो आपको पता, फेरो तो है ही बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इसमें तो सारा जाना पसंद करते हैं, जितने भी वो बोलते हैं हमको इधर ही भेज दो। जैसे आयरन है अपना फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिव पॉजिटिव भी होती है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। सो दीज आर दी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज which we studied in case of diapara and ferro. The rest of the property you can see from the notes. Now I want to discuss little bit atomic structure, which is not part of your syllabus, but still I will discuss so that you could understand what's happening inside the diamagnetic substance. अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को वो सब्सटेंस है जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी जिनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। Today we calculated that magnetic moment is given by EVR। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने लिया है, इसके लास्ट शेल में मैंने सपोज किया 2 इलेक्ट्रॉन है, only 2 electron in the last shell I suppose। No, its magnetic moment and its magnetic moment is opposite, so net magnetic moment will be 0, क्योंकि velocity की डायरेक्शन डिफरेंट है, ये किधर जा रहा है किधर जा रहा है। What you did, you apply the external magnetic field। आपने बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। चेक करना बच्चे, जब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी QVB साइन थीटा, थीटा इज 90। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो एक में फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये ऐसे जाएगा, इस पर फोर्स इधर लगेगी, ये ऐसे जा रहा है इसके फोर्स, तो एक पे फोर्स जो लगेगी इलेक्ट्रॉन पे वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देगी और दूसरी जो फोर्स लगी उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगी। सो जब वेलोसिटी का डिफरेंस आया तो मैग्नेटिक मोमेंट था 1/2 VR। इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट। तो फर्स्ट क्या हो रहा था, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर क्या दे रही थी हमें 0, बट अब 0 नहीं आएगा, देयर विल बी स्मॉल एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके ऑपोजिट होएगी। ये थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये होता है ऐसे। पैरा के अंदर अगर आप देखो, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड होते हैं, मतलब अनपेयर्ड मतलब मैं अगर सिंगल बात करूँ सिंगल ही होगा, तो अनपेयर्ड होगा तो कोई भी कैंसिल आउट नहीं करेगा। इट मीन्स ईच एटम ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज ए डाइपोल। अगर मैं एक स्लैब ले ली मैंने पैरा की बेटा, तो हर एक एटम एक डाइपोल है। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कोई इधर है कोई इधर है इधर है। So when it is not placed in external magnetic field, the net magnetic moment is again 0, क्योंकि वो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई नीचे है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके। तब भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सिंपल सब्सटेंस until you place the external magnetic field. Now you apply the magnetic field in this side suppose. So when you apply the magnetic field this side, each of the dipole will experience the force, experience the torque। आपने पीछे किया था एक्सप्रेशन से, टॉर्क इक्वल टू mb साइन थीटा। तो हर एक डाइपोल पे टॉर्क लगी और वो सारे ऐसे सीधे हो गए एकदम। अब आपको दिख रहा है बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ नॉर्थ और साउथ देखो हो गए ना स्ट्रेट, तभी हमने कहा था इट इज़ वीकली मैग्नेटाइज बट इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो नॉर्थ और साउथ। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाया में पेयर्ड थे तो कैंसिल आउट कर रहे थे, पैरा में कैंसिल नहीं करते, बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होती है, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशन करके ऑल आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। व्हेन यू एड अप यू गेट आंसर कम्स आउट टू बी 0, बट व्हेन यू प्लेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
then there is change in the behavior. और अच्छी तरह समझना, चलो चलते हैं फेरो पे। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ और ही चेंज होता है। उसमें क्या होता है, उसमें डोमेन्स बन जाती हैं बेटे। डोमेन्स क्या होता है कि जितने डाइपोल जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर। ये इनकी इस साइड है तो ये आ गए एक साइड पे आ गए, इनकी एक साइड पे है तो ये आ गए, जिनकी एक साइड वो दे अलाइन इट सेल्फ in a particular direction, thereby forming a boundary region. That region or boundary is called domains. That region or boundary is called domain. एक एक बाउंड्री के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। Now, if ferromagnetic, when it is not placed in external magnetic field, then again the net magnetic moment is equal to 0. अगर लोहे का पीस है आपके हाथ में, मैग्नेट हो रहा हो, इसमें क्या आ रहा है कि पूरी की पूरी डोमेन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है। इसमें ऐसे नहीं होता कि सारे सभी कैंसिल कर देती है। नाउ व्हाट यू डिड, यू प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। दो प्रोसेसेस होते हैं इसमें। पहला क्या होता है, पहला होता है कि अगर इफ़ यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज आई अप्लाई दिस साइड। अब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो ये इन सभी पे टॉग लगी, धीरे धीरे ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इस डोमेन में। तो द साइज ऑफ दिस डोमेन विल इंक्रीज स्लोली स्लोली स्लोली। गॉट इट? सो देयर विल बी इंक्रीज इन साइज ऑफ डोमेन। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो तो सिंगल सिंगल एटम नहीं अलाइन करता, पूरी पूरी डोमेन ही रोटेट कर देगी। दिस इज कॉल्ड स्विंगिंग इफेक्ट। होल ऑफ द डोमेन विल रोटेट। ये नहीं कि एक एक सिंगल चल रहा है, पूरी की पूरी डोमेन ही बच्चे उस केस में, तो इसमें लिखेंगे बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। बाय रोटेशन ऑफ पूरी की पूरी डोमेन ही रोटेट करेगी। So this topic basically was not in your syllabus, but to understand the basic of diapara and ferro, why they behave like this, you must know all these parameters. अब मेरी नेक्स्ट कोशिश है कि मैं इसको कैसे डोमेन को ब्रेक करूं ताकि उसको कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए आप कई मेथड कर सकते हो, हैमरिंग यूज कर सकते हो, हिटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक साइंटिस्ट हुआ है बच्चे, उसका नाम था क्यूरी। क्यूरी ने स्टडी किया इसको, क्यूरी, और एक लॉ दिया हमें जिसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ कहता है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C by T. This C is called Curie constant. This C is called, sometime question come in exam, plot the graph between temperature and this magnetic susceptibility of a paramagnetic substance. You will plot like this. Clear? And this is called and what is magnetic susceptibility? Magnetic susceptibility, okay. The magnetic susceptibility for a diamagnetic substance, ये बड़ा important है बच्चे। Diamagnetic substance में जब उन्होंने magnetic susceptibility का ग्राफ प्लॉट किया, the graph was like this. इस साइड बच्चे टेम्परेचर था, इस साइड था मैग्नेटिक susceptibility, ग्राफ was a straight line. Now straight line shows that the magnetic susceptibility of diamagnetic substance is independent of temperature. Is independent of temperature. और आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फेरो के लिए भी बताओ कैसे डिपेंड करता है। तो जब हमने फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस में इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू किया बेटा, तो अपने पास आया दैट फॉर ए फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस magnetic susceptibility is given by C minus Tc. C minus Tc.
This is called Curie-Weiss law. Curie-Weiss law. Clear? Now, in this, it is clear that it is clear that ferromagnetic substance can be converted into paramagnetic substance, but a para or ferro can never be converted into diamagnetic substance. Sometimes CBSE asks question, which of the property is present in all of the magnetic material? तो याद रखना बच्चा diamagnetic properties available in all the magnetic materials. और लास्ट में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉ. ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है नहीं सिलेबस में, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट हमें पढ़ना चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है. उन्होंने एक सब्सटेंस लिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको बच्चे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक. साइड बाय साइड प्लॉटेड द ग्राफ between intensity of magnetization and apply magnetic field. The term I use, intensity of magnetization. It is the magnetic field induced per unit volume. That is called intensity of magnetization. These are the two electromagnets. अब आपने करंट इंक्रीज करना शुरू किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई इधर, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई तो उसने इस वाले को भी क्या कर दिया. तो साइड बाय साइड एज इट इज़ क्लियर, as we increase this intensity of magnetization also increases. हुआ क्या होगा अंदर, सारे के सारे डोमेन सीधे होने शुरू हो गए, सारे के सारे डोमेन सीधे हो गए. अगर ये फेरो तो डोमेन होंगे इसमें. आफ्टर सम टाइम्स ऑल द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन. अब फर्दर नहीं हो रहा बेटा कुछ भी, सैचुरेशन आ गई. जितना मर्जी आप आगे, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है ही नहीं उसके पास रोटेट करने के लिए. Now what he did, he decreased the current in electromagnet so that this magnetic field start decreasing. अब हुआ क्या कि ग्राफ ने कुछ ऐसी शेप ली. If you look at this shape, at this point your applied magnetic field is zero, but still it shows intensity of magnetization. It shows the property of intensity of magnetization. This point is called point of retentivity. This point is called point of retentivity. If I call O, this O is called point of retentivity. Now they reverse the direction of current in this. When you reverse, this side will be south and this side will be north. Opposite में चलिए तो यहाँ पे आगे उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन